So Lomov greatly moved, honored Stefan Stepnovich. Do you think I may count on her consent? So as Lomos wants to know that is there is consent of Natalia that she also marriages with me. अब देखो यहाँ पे क्या है कि हालांकि चुबुकोव को लोमोव है वो पूरी तरीके से पसंद है, लेकिन इसके अलावा वो बिल्कुल क्लियरली पूछ रहा है कि डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट? हु इज हर हेयर? नतालिया इज हर हेयर. तो वो पूछना चाह रहा है कि क्या मैं ये मानूं कि नतालिया की भी कंसेंट है? इफ यू आर एग्री विद दिस proposal, so is this clear that Natalia also wants to marry me? Chubuko, why? Of course, my darling. And as if she won't consent, she is in love, act eager. She is like a lovesick cat, and so on. Shan't below exit. And Chibuko says that, oh, she will be agree because she loves you very much and she is very eager to marry you. She is like a lovesick cat, and so on. So on मतलब इस तरह से it means there is no question of refusing of Natalia because she loves you. So you don't worry, shan't be long. तो तुम इतना मत सोचो कि she would be agree. Exit means Chibuko exit from the scene. Now Lomov is here. Why Chibuko exit the scene? Because Chibuko has gone into the house and he wants to say Natalia that someone has come to meet you and you should meet him. अंदर वो इसलिए जाता है ताकि वो नतालिया को बुला सके और बोथ लोमो और नतालिया दे कैन टॉक विद ईच अदर ऑन दीज इश्यूज. लेकिन अभी वो उसको जाके अंदर ये नहीं बताता, सिर्फ वो ये बताता है कि कोई आया है तुमसे मिलने, तुम वो बात कर लो, लेकिन वो ये नहीं बताता कि लोमोव आया है और वो मैरिज प्रपोजल के लिए आया है. इट मीन्स Natalia doesn't know कि why Lomov has come here. He doesn't know that Lomov has come here to propose her for the marriage. So now Lomov is left alone on the scene. Chubukov has gone into the house to call Natalia. So Lomov, it's cold. I am trembling all over, just as if I had got an examination before me. The great thing is I must have my mind made up. So now again the condition that Lomov is very much confused. He is trembling. और कैसे tremble हो रहा है? जैसे कि कोई एग्जाम से पहले एक जो टेंशन होती है वो है, because he knows very well that Natalia is about to come and he has to express his feelings to her. That's why he is in a great tension. The great thing is I must have my mind made up. अब लेकिन मैंने अपना माइंड बना लिया है उसको प्रपोज करने का. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get married. और वो एक ये रियलिटी बता रहा है कि अगर मैं वेट करता रहूं कि मेरे को सोचने के लिए भी और टाइम चाहिए, या मैं हेजिटेट ऐसे ही होता रहा, या मैं ज्यादा बोलता रहा, या मैं किसी एक आइडियल गर्ल को, परफेक्ट गर्ल को तलाश करता रहा, और या किसी रियल लव को मैं ढूंढता रहा, तो आई विल नेवर गेट मैरिड. बिकॉज ऑलरेडी जो आप अभी देखोगे जो लोमोव है, he is already 35 years old and he is suffering some ailment also, disease also. You will next going to read it that what type of disease that Lomov is suffering from. तो कहता है कि इस तरह से अगर मैं टाइम पास करता रहा कि ये देखूं मैं वो देखूं, तो it would be very late and I will never get married. But it's called Natalia, and Natalia Stepnovna is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. So अपने मन में ही ये सोच रहा है कि दैट अभी वो आई नहीं है. अब नेक्स्ट उसमें आती है वो डायलॉग जब उसका वो बोला जाता है, तो वो कहती है कि वो एक बढ़िया हाउस कीपर है, एक घरेलू हाउस कीपर का मतलब कि घर का काम करने वाली, और इस टाइप से है. और शी इज ब्यूटीफुल ऑल्सो, शी इज ऑल्सो वेल एजुकेटेड. वट मोर डू आई वॉन्ट एंड अ पर्सन वट डू मोर. और एक इंसान को क्या चाहिए जब वो अपने लिए लाइफ पार्टनर को तलाश करता है. बट आई एम गेटिंग अ नॉइस इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट. लेकिन अभी भी उसको लग रहा है कि जैसे कानों में उसकी आवाज आ रही है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, कंफ्यूज भी है थोड़ा सा. आई एम ऑलरेडी 30 एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी. और अब तो मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए. इन द फर्स्ट प्लेस, वाई ही थिंक्स दैट नाउ ही शुड मैरी, बिकॉज
He is now 35 years old, a critical age, so to speak, as we speak, that 35 years is not a youngsters. And in the second place, I ought to lead a quiet and regular life. And he wants a life of peace. Quiet here means peace और regular, जिसमें कोई टेंशन ना हो, परेशानी ना हो. I suffer from palpitations. Palpitations का मतलब होता है कि एकदम से जैसे कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, एक पसीना आने लग जाता है, तो इस तरह की उसको प्रॉब्लम भी है. आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट. और एक उसकी नेचर है कि हमेशा वो बहुत ज्यादा एक्साइट, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि कोई प्रपोजल के लिए आया है और बहुत ही एक्साइट है, एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट. और अजीब सा मैं उदास भी हो जाता हूँ, मतलब अजीब सी उसकी कंडीशन है. एक फिजिकली वो अपने आप को खुद ही एक्सेप्ट करता है, लमोक, दैट फिजिकली ही इज नॉट हेल्दी एंड ही इज नॉट ओके. And at this very moment my lips are trembling and there is a twitch in my right eyebrow. और ऐसे फेस भी अजीब सा बनने लगता है. His lips starts trembling and there is a twitch in his right eyebrow. But the very worst of all is the way I sleep. और जब मैं सोता हूँ तो और भी बुरा होता है, वो ढंग से सो भी नहीं पाता, इस तरह की उसको प्रॉब्लम है. I no sooner get into bed and begin to get off. ना तो मैं जल्दी सो पाता हूँ, ना ही जल्दी उठ पाता हूँ. When suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulders and head. और सोए सोए ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे खींच रहा है और मुझे अपने शोल्डर्स और हेड में ऐसा फील होता है, और अचानक मैं डर की वजह से उठ जाता हूँ. आई जंप अप लाइक ए ल्यूनेटिक, होता है मैड पर्सन. वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन. फिर चलता हूँ, फिर लेट जाता हूँ. बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल. और जैसे ही मैं दोबारा सोने लगता हूँ तो ऐसे लगता है कि दोबारा मुझे कोई उठा रहा है. एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स. और ऐसा बहुत बार 20 टाइम्स हो चुका है. इट मीन्स here Lomov is thinking over his condition, that he is not so healthy and his age is 35 years old. This is age is very critical. In this age a beautiful match is hard to find, but somehow he makes his mind to propose Natalia, and he thinks that Natalia is a perfect match for him, although he doesn't so love Natalia, but he thinks over his situation. That's why he is ready to marry विथ नतालिया. समझ आई बात? यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन एक बन रहा है वो इट इज नॉट बेसिकली बेस्ड ऑन लव, बट इट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट लोमोव इज फेसिंग. कि लव वाला जो सीन है वो कम है यहाँ पर. ज्यादा क्या है कि उसकी एज हो चुकी है, उसको ये प्रॉब्लम है, वो सो नहीं पाता, वो उठ जाता है और एक टेंशन उसको रहती है, उसकी वजह से वो रहता है. और इसी वजह से कि क्योंकि ये the relationship is not based on love, that's why there is some argument that you will see in the next. So here Natalia Stepnovna comes in as her father had gone there and he had already informed about that someone had come there. So Natalia, well, there, it's you. And Papa said, go, there is a merchant come for his goods. How do you do, Ivan Veselovich? So what did Chubukov asked her? क्या उसको कहा होगा उन्होंने? और वो क्या कहती है कि it's you. She is not believing that here is Lomo and go there. और what his father said, go, there is a merchant. कि कोई merchant आया, कोई businessman आया है, कोई सामान वगैरह तुमसे लेने के लिए आया है, अपने गुड्स को सेल करने के लिए मे बी आया है. तो वो उसको देख के हैरान हो जाती है. He is Ivan Veselovich. So Lomov, how do you do? Honored Natalia Stepnovna, and Lomov also asked about about her. How do you do? Natalia, you must excuse my apron and negligee. अब देखो एप्रन आपको पता ही है, जैसे कि ऊपर ड्रेस पहन के उसके ऊपर एक जो कपड़ा पहना जाता है ताकि वो ड्रेस मेन खराब ना हो, दैट इज एप्रन. और नेग्लिजी मतलब गाउन, एक क्योंकि वो अपने घर में है एंड शी इज नॉट इन अ फॉर्मल ड्रेस, शी इज इन कैजुअल्स. तो वो कह रही है कि मैं एकदम से ऐसे आ गई बिकॉज आई वॉज डूइंग सम हाउस होल्ड वर्क्स एंड दैट्स व्हाई यू एक्सक्यूज मी बिकॉज ऑफ माई एप्रन एंड नेग्लिजी. वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग. शेलिंग का मतलब छीलना होता है, मटर को छीलना, पीस मटर होते हैं. वी वर डूइंग दैट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इन प्रॉपर ड्रेस. व्हाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? सिट डाउन, यू हैव बीन सच हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफी देर से हो शायद तुम. दे सिट देमसेल्व्स. वोंट यू हैव सम लंच? have you done lunch today afternoon? Lomov, no thank you, I have had some already. वो पूछती है कि क्या करना है तुम्हें, लंच कुछ खाना है? No, he says that he have already taken his lunch.
Natalia, then smoke. You can smoke. Here are the matches, and she offers matches to Lomov. The weather is splendid now, but yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. So he tells she talks in a very general way, because she doesn't know about the real purpose of Lomov's coming. That's why. And when we talk in a very casual way, we start from the weather. जब कोई और बात नहीं होती और एक बात आगे चलानी होती है एक जनरल वे में, तो ये पूछते हैं और क्या हालचाल है, खाना खा लिया, और मौसम आज बढ़िया है, कल ऐसा था. तो she starts talking like that. The weather is splendid. Splendid means pleasant, beautiful. But yesterday it was not so. It was so wet. और wet का मतलब it was raining. और काम उनके खेत हैं, जैसे कि मैंने बताया लैंड ओनर्स हैं वो. वर्कमैन didn't do anything all day. और जिस दिन बारिश होती है the workman didn't do. How much hay have you staked? Just think. तुम्हें क्या लगता है? मैंने hay का मतलब होता है ग्रास होती है. जो एनिमल्स जो खाते हैं ग्रास, या उनका जो एक फीड होता है, दैट इज कॉल्ड हे, HAY, हे. और ये हे वर्ड कई बार यूज होगा. सो हाउ मच हे हैव यू स्टेक्ड, कि कितनी, तुम सोच सकते हो कि मैंने कितनी सारी जो हे है, जो एनिमल्स को, पेट्स को जो फीड किया जाता है, वो ग्रास है, वो इकट्ठी की होगी. स्टेक का मतलब इकट्ठा. जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट. और देखो मैं इतनी वो हूं कि बस मुझे लालच आ गया कि फटाफट काट के सारा कुछ मैं, जो है ग्रीन ग्रास जो होती है जो एनिमल्स के लिए है, वो मैंने इकट्ठी कर दी. और आप देखो वो सारी की सारी शायद सूख जाएगी. मुझे इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए. एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट. और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने इतनी सारी जो है उसको कट कर लिया, कटवा लिया, क्योंकि उनके आगे सर्वेंट्स थे. बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे में रोट. रोट का मतलब खराब होना, जलना या सड़ना. I ought to have waited a bit. I ought to have means मुझे ऐसा करना चाहिए था. Waited a bit for some time. But what's this? Why you are in evening dress? Well, I never. Are you going to a ball or what? Though I must say you look better. Tell me, why are you got up like that? So now till the time Natalia hadn't noticed that Lomo was in a formal dress, and she started speaking in a casual way. She was telling about her fields, but at once she noticed that Lomo was in a beautiful dress. That's why she was surprised and say, "What's this? Why you are in the evening dress? क्या भाई ये evening dress में? Well, I never have thought like that. Are you going to a ball?" अब देखो ball आपका जो हमने आपकी footprint without feet में एक चैप्टर पढ़ा था, necklace चैप्टर था, उसमें बॉल का रेफरेंस आया था. और बॉल हेयर डजंट मीन जो बॉल वो खेलने वाली नहीं है. बॉल पार्टी जो डांस पार्टी है, दैट इज कॉल्ड बॉल. और व्हाट, ठीक है, किसी आर यू गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ए बॉल और डांस पार्टी और वेयर? Though I must say you look better, but overall you are looking handsome, you are looking better. Tell me, why are you got up like that? Why are you got up like that? ऐसे आए हो एकदम ऐसे खड़े हो. What's the matter? Lomov. Now it's the turn of Lomov to express his feeling towards Natalia. He is very excited. You see, honored Natalia Stepnovna, the fact is I have made my mind to ask you to hear me about, because I have prepared myself that I want to tell you something and you should be ready to hear me. Of course, you will be surprised. No doubt you will be surprised when I will tell why I have come here, and perhaps even angry, and I don't know how would you react when I would tell you my feelings. So maybe you may be angry and you may be surprised. But aside जब play में aside होता है, it means the character is talking himself. He is not talking to the audience. ठीक है, कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से वो बात नहीं कर रहा होता है. जब असाइड आता है वो अपने मन में बात करता है, लेकिन ऑडियंस को तो वो सुनना ही होता है. इट्स ऑफुल कोल्ड, की ठंड बहुत है, वो अपने आप से ही बोलता है. नतालिया doesn't listen to it. Natalia, what's the matter? Pose. Well, tell me what's the matter. Why are you speaking like this? Lomo, I shall try to be brief. Try to be brief. I am telling you in brief. You must know, honored Natalia Stepnovna, that I have long since my childhood, in fact, in reality, had the privilege to know your family. कि बचपन से ही हम तुम्हारी फैमिली को जानते हैं. प्रिविलेज का मतलब होता है एक सौभाग्य, एक हमारा भाग्य अच्छा है कि तुम्हारी जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है. एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर फैमिली? So this is coming here. My late aunt and her husband, from whom, as you know,
I inherited my land. My late aunt, my aunt had been died, and her husband from whom, as you know, तुम्हें पता है कि I inherited my land, जो मुझे जमीन जायदाद मिली है वो किसने दी है? वो लोमोव की आंट ने और उसके हस्बैंड ने, क्योंकि जो लोमोव की आंट और उनका हस्बैंड है उनके कोई जो संतान थी वो नहीं थी, तो उन्होंने सारी की सारी जो अपनी जमीन थी उसके आंट और उसके हस्बैंड ने वो किसको दे दी? लोमोव को दे दी। और ये बात नतालिया को पता है। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर। अब उन दोनों का रिस्पेक्ट, यानी कि वो फैमिलीज की जैसे बात करते हैं कि मेरी जो आंट है वो और उनके जो हस्बैंड है वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे तुम्हारे फादर की, अभी भी फादर हैं, चुबुकोव फादर हैं। और योर लेट मदर, इट मीन्स नतालियाज मदर हैड बीन डाइड, नतालियाज मदर इज नो मोर, तो उसके फादर ही है, उनसे अच्छे रिलेशन से, क्योंकि जो उसकी आंट थी वो एक तरह से उसकी मदर की तरह से थी। तो यानी कि जो मेरी आंट है और अंकल थे उनका तुम्हारे मदर और तुम्हारी जो लेट मदर और फादर है उनसे बहुत रिस्पेक्ट था। The Lomos and the Chubukos had always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. Lomos कौन है? Lomos जो अभी आया है, लोमोव, इवान लोमोव है, और चुबुकोस कौन है? जो लड़के की तरफ वाले हैं। They have always had the most friendly, हमेशा से वो फ्रेंडली रहे हैं। I might almost say the most affectionate, एक बहुत ही लविंग रिलेशन रहा है, और रिगार्ड और रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। एंड एज यू नो माई लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और हमारी जमीन भी वो तुम्हारे पड़ोस में ही है, मतलब जमीनें भी पास पास हैं। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मिडोज टच योर बर्च वुड्स। ऑक्सन मिडोज, अब देखो ये मिडोज क्या होते हैं? जहाँ पे ग्रास वगैरह उगती है और जो जमीन होती है और पेट्स के लिए ग्रास और जो भी फसल वगैरह उगाई जाती है वो मिडोज है, और ऑक्सन उसका नाम है। तो कहता है कि जो हमारे जो ऑक्सन मिडोज हैं वो तुम्हारे बर्चवुड्स को, उनके जो फील्ड है उनका नेम क्या है? बर्चवुड। वो देखो तुम्हारे उनको भी टच करते हैं कि जमीनें भी हमारे साथ साथ हैं, फैमिली के भी इतने अच्छे रिलेशन हैं। तो अब देखो यहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाता है। अब ये जो ऑक्सन मिडोज हैं दे बिकम अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। लोमोव ने क्या कहा कि दैट आर ऑक्सन मिडोज। अब नतालिया कहती है कि ऑक्सन मिडोज हैं वो तुमने कैसे कह दिया, वो तो हमारे हैं। और अब आप ये देखोगे कि आगे जो आधे से ज्यादा प्ले है उसमें वो दोनों इसी बात को लेके लड़ते रहते हैं। वो नतालिया कहती है कि ऑक्सन मिडोज आर आर्स एंड लोमोव सेज दैट दे आर आर्स। और एक जो मेन जो उनका पर्पस होता है एक दूसरे को प्रपोज करने का, वो गायब हो जाता है और एक बहुत जो फाइट है वहां पे वो स्टार्ट हो जाती है। नतालिया, एक्सक्यूज माय interrupting you, you say my oxen meadows, but are they yours? उसको लगा शायद इसने गलत बोल दिया, that's why नतालिया saying that you say my oxen meadows, तुमने कहा कि हमारे। are they yours, क्या वो तुम्हारे हैं? लोमो, yes mine, they are ours। Natalia, what are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. Natalia says that, what are you talking about? They are ours. Oxen meadows are ours, not yours. So this becomes a cause of disputes. At first they start quarreling or fighting or oxen meadows. Lomo, no, mine honored Natalia Stepnovna. कि ऑनर्ड नतालिया, दे आर आर्स। और किस पे बात चल रही है? ऑक्सन मिडोज पे। नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट? मुझे तो पता ही नहीं था कि वो तुम्हारे हैं, तुम्हें कैसे लगा कि वो तुम्हारे हैं? लोमो, हाउ, कैसे, क्या वो है ही हमारे? जो चीज हमारी है उसमें पता चलना या ना चलना वो क्या होता है? I am speaking of those oxen meadows which are wedged in between your birchwoods and the burnt marsh. वो कह रहा है मैं उन ऑक्सन मिडोज की बात कर रहा हूँ। वेस्ट का मतलब बीच में फंसे हुए हैं तुम्हारे जो बर्चवुड के और बर्न्ट मार्श, एक और एरिया का नेम है मार्श जो होती है, उसके बीच के जो है ना वो ऑक्सन मिडोज है, वो हमारे हैं। नतालिया, यस यस दे आर आर्स। नतालिया इज सेइंग दे आर आर्स। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन ऑन नतालिया स्टेपनोवेना, दे आर माइन। अगेन लोमो सेड दे आर माइन। नतालिया, जस्ट थिंक इवान वेसलमिच, हाउ लॉन्ग हैव बीन दे बीन योर्स, तुम्हारे कब से हो गए? लोमो, हाउ लॉन्ग? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर। हाउ लॉन्ग, क्या, जब से मुझे याद है, जो चीज हमारी है वो शुरू से मुझे याद है। नतालिया, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, ये तो तुमने ऐसी बात कह दी कि मुझे तो याद ही नहीं है कि ये कैसे हुआ। अब लोमो बताता है कि वो कैसे है, पूरी बात बता रहा है।
but you can see from the documents, you can see in the papers, owner Natalia Stepanovna, ऑक्सन मिडोस, इट्स ट्रू, वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। एक बार था उन पे भी झगड़ा, पहले डिस्प्यूट होता है, झगड़ा रहा था, लेकिन अब वो झगड़ा खत्म हो गया है। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट। You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasant of your father's grandfather। अब देखो ये ध्यान से सुनो कि किस तरह से पुराने, कहां से ये ऑक्सन मिडोज की बात चली। You see, my aunt's grandmother, aunt क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है लोमो के, आंट के पास ही वो रहा है, तो वो कहता है कि जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी, उसने फ्री में ये जो मिडोज थे वो किसको दे दिए थे, तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को, यानी तुम्हारे दादाजी के जो वर्कर्स थे उनको कह दिया था कि तुम उनपे अपना जो भी है फील्ड अपने यूज करो और कुछ भी उसके ऊपर तुम उगा सकते हो। Peasants belonging to your father and had the free use of meadows for 40 which they were to make bricks for her। और उसके लिए क्या करते थे, वो ईंटें वगैरह कुछ बना के दे देते थे और यूज करते थे कि उसमें वो ईंटें वगैरह बनाना और इस तरह से वो काम करना, तो वो दे दिए थे, ऐसे ही फ्री में दे दिए थे। मेरी आंट के की ग्रैंड मदर ने किसको दे दिए थे, तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर को वो दे दिए थे। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, क्योंकि जो किसान थे वो तुम्हारे पीजेंट्स थे, वो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर थे, वही उनपे काम करते थे, लेकिन जमीन हमारी थी। फ्री यूज ऑफ द मिडोस फॉर 40 years, और 40 years तक उन्होंने काम किया। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट। और उनको क्या आदत पड़ गई, उनको आदत ही ये पड़ गई कि उन्हें लगा कि उनके ही हो गए। 40 साल तक जब एक जगह पे उन्होंने काम किया तो उन्हें लगा कि वो इनके ही हो गए, तो इस वजह से शायद उनको लगता है कि ये जो ऑक्सन विडोज हैं वो उनके हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मिडोज हैं वो हमारे हैं।